Constitution. It was worth mentioning that in response to the demand, the central government has initiated the process for full implementation of the provision of Article 244A of the Indian Constitution by holding 2 rounds of ministerial levels of West Consultation KSA DSU on 26 December 1988 and 25 July 1989, and another 2 rounds of secretary level talks with Consultation KSA DMC on 23rd April 2021 and 24th September 2002. But the fifth article is yet to be implemented. The Honorable Local MP Mr. Dhiren Singh has introduced a private member bill on 8th August 2016 under the name of the Assam Reorganization. এইখিনি আৰ্টিকেল 244 দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী এই দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আজিও ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা ইয়াত মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে এইটো আপুনি কি ক'ব আৰু চৰকাৰ না আচলতে এইটো যে আজি ধাৰণা দিলে ইয়াত আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ ৰাইজে এটা সজাতি দলে ইয়াত আহি ধাৰণাত আজি বহিছে আৰু এটা বিশেষ এটা উদ্দেশ্য লয় সেই উদ্দেশ্যটো হ'ল ভাৰতীয় সংবিধানত যিটো অনুচ্ছেদ আছে 244A আৰু এই অধীনত অসমত এখন অট'নমাছ স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য গঠন কৰাক লৈ গতিকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ ৰাইজৰ এইটো সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু এই সাংবিধানিক অধিকাৰটো এই প্ৰাপ্যটো সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে যি দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলন কৰি আহিছে মই কওঁ যে ভাৰত চৰকাৰে নিশ্চয় এই বিষয়ত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব আৰু মই আশা কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতৰ দিনতে বহুতো উল্লেখনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা আমি দেখিছোঁ যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰ্টিকল 370 যিটো সংবিধানত এই আৰ্টিকল 370 থকাৰ কাৰণে এটা জম্মু কাশ্মীৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এটা যে ৰাজনৈতিকভাৱে যিটো সংঘাত হৈ আছে এই সংঘাত দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰ্টিকল 370 সংবিধানৰ পৰা এইটো স্ক্ৰেপ কৰা হৈছে গতিকে ইমান এটা ডাঙৰ ইছ্যু ধৰি লওক গোটেই বিশ্বতে ধৰি লওক ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দেখিছোঁ আৰ্টিকল 370 স্ক্ৰেপ কৰাৰ লগে লগে গতিকে সেই কামটো যদি আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যদি কৰিব পাৰে তেনেহ'লে এইটো আমাৰ সংবিধানত থকাৰ এটা অনুচ্ছেদহে এইটো জাষ্ট ইমপ্লিমেণ্টহে কৰিব লাগে ক্ৰিয়েটো কৰিব নালাগে নতুন আকৌ সংবিধানত ভৰাই দিব লাগে সেইটো নহয় সংবিধানত থকা বস্তুটো এইটো ৰূপায়ণহে কৰিব লাগে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনতে আমাৰ এই যিটো দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীটো পূৰণ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই সমূহ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ সংগ্ৰামটো আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আকৌ আগুৱাই লৈ যাব লাগিব সংসদত এই 244A সন্দৰ্ভত এটা বিল উত্থাপন কৰিব দাবী কৰিছে আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ত মই ইতিমধ্যে মোৰ ভাষণত মই কৈছোঁ যে কাঞ্চাছ দিকম কাছ দিকমৰ নেতৃত্ব আৰু আমাৰ টিম কাৰ্বি আংলং আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ তৰুণ আমি অহাবাৰ সেশন হোৱাৰ আগতে আমি এটা বিশেষ এটা গুৰুত্ব आज हम लोग यहाँ 8 अगस्त को हम लोग यहाँ कार्बी आंगलों और डिमा हासाओ से धरना करने के लिए आए हैं और ये धरना हम लोग इसीलिए करें क्योंकि पिछले 34 सालों से 37 ईयर्स से जो ऑटोनोमस स्टेट के लिए मूवमेंट लगातार करके आए हैं और हर साल हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे 3 बार मानसून सीजन पे एक बार और विंटर सीजन पे एक बार और बीच में एक बार आके हम लोग 3 बार या 2 बार आके हम लोग लगातार इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं इस आंदोलन किस लिए हो रहा है ये ऑटोनोमस स्टेट क्या है तो ऑटोनोमस जो आर्टिकल 244A जो है ये 1969 में जब मेघालय का गठन हुआ था तो असम मेघालय रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसको
इंसर्ट किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। तो ये मांग जो है ये हम लोग संविधान के खिलाफ नहीं है, संविधानिक ये मांग है, संविधानिक ये आंदोलन है। और ये लगातार हम लोग संवैधानिक अधिकार जो है हम लोग मांगना पड़ रहा है। और इसका जो मांग है इसको जितना महत्वपूर्णता, जितना इम्पोर्टेंस मिलना है ये अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग बार बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हम लोग का जो मांग है ऑटोनोमस स्टेट का, इसका जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट बिल लाया जाए पार्लियामेंट में और इसको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए। और जो अधूरा सपना है जो 34 सालों से 37 ईयर से जो डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग का जनता जो देख रहा है सपना, वो फुलफिल करे और हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट दिया जाए। जंतर मंतर में कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली जंतर मंतर में डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग से हर साल प्रदर्शन होते हैं। क्योंकि ये प्रदर्शन आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। और ये आर्टिकल 244A इंडियन की संविधान के अंदर में ही इंसर्ट किया गया है। ये डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग के लोगों का एक संवैधानिक डिमांड है, मगर संवैधानिक डिमांड होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। इसलिए 40 सालों से कई बार हम लोग प्रदर्शन किया गया है, कई सेक्रीफाइस किया गया है, मगर आज तक सरकार ने ये नहीं बोला है कि कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ को आर्टिकल 244A इम्प्लीमेंट करेगा, ये नहीं बोला है। बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, उन लोगों का कई पॉलिटिकल प्रॉमिस दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के समय भी डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग को लोगों को प्रॉमिस दिया गया है कि आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करेगा। अभी जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, उन लोगों को नेता भी बोला गया है कि आर्टिकल 244A को भी इम्प्लीमेंट करेगा, मगर वेयर इज द प्रॉमिस? कहाँ है जो सरकार ने प्रॉमिस दिया है कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ के लोगों को? वो प्रॉमिस कहाँ है? इसलिए 40 साल हो या 50 साल हो, ये आंदोलन हम लोग जारी रखेगा अगर केंद्र सरकार ने आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट नहीं करने से। आज यहाँ पे कंचास दिकोम, डिमा हसाओ स्टूडेंट यूनियन, गारो यूनियन, गोरखा स्टूडेंट यूनियन, कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन, कारसा और कई संगठन यहाँ पे मौजूद हुआ है। हम लोग यहाँ पे करीबन 300 प्रदर्शनी डिफू से यहाँ पे आया है, तो 300 प्रदर्शनी आज 2 बजे तक ये प्रदर्शन जारी रखेगा। प्रेशराइज तो करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो प्रेशराइज करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनना है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार, जो बीजेपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर की लोगों ने ही बोला हुआ है कि आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करेगा जब बीजेपी सरकार दिल्ली में आ जाए। तो दिल्ली में तो बीजेपी सरकार है, तो व्हाई नॉट दे आर इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 244? दिस इज द बिग क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू द गवर्नमेंट।